Germantown Multi Speciality Hospital, Dr. Mir Jawad Zar Khan, National Award winner, Senior Orthopedic Surgeon and Director of Germantown Multi Speciality Hospital। इनके साथ मोस्ट सीनियर एंड वेल एक्सपीरियंस डॉक्टर की टीम आपकी खिदमत में रहेगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 7 नेशन न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। निजामाबाद आरमूर के इलाके में मौजूद भरत चंद्रा स्कूल में स्टूडेंट्स को उर्दू लैंग्वेज सिखाने पर कुछ शरपसंद अनासिर ने स्कूल में घुसकर उर्दू के टीचर के साथ गाली गलौज की और उन्हें एक थप्पड़ भी रसीद कर दिया। इन शरपसंद अनासिरों का कहना है कि भरत चंद्रा स्कूल में बच्चों को उर्दू नहीं सिखानी चाहिए और ये सारा वाकया आरमूर पुलिस की मौजूदगी में पेश आया और पुलिस यहाँ पर बेबस नजर आ रही है। अमजदुल्ला खान खालिद स्पोक पर्सन एमपीटी ने इसी को लेकर एक बयान जारी करते हुए चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी को अपनी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर बनने के बाद से फिरका परस्ती के वाकयात पेश आते जा रहे हैं। आइए सुनते हैं तफसीलात इन्हीं की जुबानी। ఇది దేవాంశుడి పేరున్నదా? ఇది ముస్లిం ముస్లిం పిల్లల దగ్గర లంజావుడక ఇది తెలుగు ఉర్దూ నేర్పిన పోషడి సుబార్ లంజావుడక ఇవన్నీ నియర్సుండి లంజావుడుకు అంత బంగారు ఎందుకు కనిపిస్తే ఇంత కనిపించింది నువ్వేమన్నా పడతావా దాడికే నువ్వు వద్దంటే ఎవరు చెప్పమన్నారు? దేన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారు? అరే ఓ బాధగా ఇంటికి పంపేటప్పుడు మేము మా స్కూల్లో ఉర్దూ నేర్పుతామని వచ్చినప్పుడు నేను 1000% చెప్తున్నా. ఒక్క మేడం ఇప్పుడు అంటే మా అన్నయ్య ఏమన్నాడు, మేడం మీరందరు హిందువులు ఉన్నారు, కనీసం మీ పిల్లలకి ఇట్లా నేర్పితే రాంగ్ మెసేజ్ పోతుంది మేడం అనంటే మీరు మమ్మల్ని అనడానికి లేదు, ఇవన్నీ మీరు నేర్పెట్టియా ఎందుకు వస్తుంది? अरे आग श्रावण బయటికి వచ్చిందాక ఇంత భయం లేదే అన్న
ఆడు చేసింది ధర్మద్రోహం, ఇది ధర్మద్రోహం అయినా అది నిజంగా పశ్చాత్తాపం లేదు సార్. అడిగాడు కొనసాగిస్తున్నాడు. ఆదర్శంతో అది కాదే అన్నా సీనన్నా మీ అడిగే విషయం ఏం తెలుసా? ఆ రోజు 100 సార్లు 200 సార్లు నమోదు చేస్తాడు. ఆడికి క్లాస్ ఏం పెట్టి డిమాండ్ ఉంటాడు. ఇదే క్లాస్ రూమ్ లో పోరాలను పట్టుకొని నమోదు చేపిస్తున్నాడు. అడిగి రక్తం అరే ఆడి ముఖంలో ఇంత పశ్చాత్తాపం లేదు. ఏం మిక్కుంటారో అని చూస్తున్నాడు. మరి దీని మీద ఏం యాక్షన్ తీసుకుంటారు మీరు? రిపోర్ట్ ఎప్పుడు ఇస్తారు? అన్నీ అయిపోయినాకనా? ఎప్పటికైనా రోజు అయినా స్కూల్ స్టార్ట్ అయింది. మరి వాళ్ళు డిసిషన్ ఇచ్చిండు ఏం మీరు ఏం చూడరా? మరి మీరు చేయాలి కదా, ఏం చేస్తున్నట్టు? 28 నుంచి ఛాలెంజ్ ఏ రిపోర్ట్ పంపిస్తారు? చేస్తే దానికి ఫర్దర్ యాక్షన్ ఏముండదు, సెగ్రేషన్ క్యాన్సిల్ చేస్తారు. మళ్ళీ ఆయన ఇంకో పేరు వెళ్ళా మళ్ళీ ఎప్పుడు పెట్టి పెట్టడా? మళ్ళీ ఉర్దూ మీడియమా? మీకు ఉర్దూ రోజు డైలీ చెప్తారా? ఏ సార్ చెప్తాడు? ఏ టీచర్? మీకే అందరికి చెప్తారా? అన్ని క్లాసులు చెప్తారా? तुमके बोलना ना, नहीं बुक ही पढ़ बड़ा एक मिनट उर्दू ఏంది అదేంది? ముస్లిమా? నువ్వు తెలుసా? చదువు అది. అది ఏ భాష మీకు చెప్తారా? రోజు చెప్తారా? ఉర్దూ సబ్జెక్టు ఇదంతా మీకు చూడు రాజేశం కూడా ఎవరు చెప్పినది మీకు ఇప్పుడు స్కూల్ టీచర్ మన సమయంలో టీచర్ ఇది ఎవరు చెప్తారు? మేడం మేడం చెప్తుందా?
అంటే ఇప్పుడు చదువుతుండో ఈ పిల్లాడు అంటే చెప్తే చదువుతుండో ఈ పిల్లాడు చదువుతుండు స్కూల్లో పిల్లలకి ఏంటంటే ఎన్ని రోజుల నుంచి చెప్తున్నాం మీది 20 తారీఖు నుంచి చెప్తున్నారట. తెలుగు మీడియం స్కూల్లో, ప్రైవేట్ తెలుగు మీడియం స్కూల్లో 20 పిల్లలు చెప్తున్నారు. 20 తారీఖు నుంచి ఉర్దూ చెప్తున్నారట. బలవంతంగా వీళ్ళతో ఈ ఉర్దూ రాపిస్తున్నారు. చదువుతున్నారు, చదివిస్తున్నారు. చదివిస్తున్నారా? ఉర్దూ ఏడిపిస్తున్నది. 20 రోజులు అండి, 20 తారీఖు ఒక వారమే. ఉర్దూ మీడియం స్కూల్లో తెలియదు కదా. 5వ తరగతి పిల్లలకు 20వ తారీఖు నుంచి బలవంతంగా ఉర్దూ పేజీ చేపిస్తున్నారు. ఇప్పుడు फरवरी में वसंत पंचमी की एडमिशन करने का प्रोसेस चालू हुआ था। तो प्रोसेस में थोड़े पेरेंट्स क्या बोल रहे थे, मुसलमान के बोल तो हमारे बच्चों को उर्दू तालीम दो, हमारे बच्चों को बोल तो ठीक है, मैं हमारे मैनेजमेंट से बात करके नेक्स्ट ईयर के लिए इम्प्लीमेंट करता हूँ, अभी बीच में नहीं होता बोल के प्रॉमिस किया था उनको मैं। वो प्रोसेस में जून से थोड़ा शुरू हुआ, एडमिशन करना शुरू करा था मैं। एडमिशन कराया, सब हुआ, मैनेजमेंट से बात करा तो सर बोले आप टेंशन न करो सर, मैं करता हूँ बोल के सर खुद अपनी तरफ से टीचर अपॉइंट करे। जब तक सर टीचर स्कूल को आए नहीं, मुझे खुद पता नहीं कि टीचर अपॉइंट हो गए बोल के। टीचर सर खुद अपॉइंट करे, सर फाइनल सब्जेक्ट फाइनल कर लिए, क्लासेस सारी डिसाइड कर दिए। मेरा काम सिर्फ उनको इम्प्लीमेंट करने का था। इम्प्लीमेंट करो के बोल दे के मैं फिर एडमिशन प्रोसेस में चल रहा था मैं। 2 दिन पढ़ा है। पेरेंट्स थोड़े हिंदुआ के आगे क्या बोले, कई को पढ़ा रहे इनको बोल दो। कंस्ट्रक्शन में बिल्डिंग चल रही, 2 सेक्शन करने का था उनको, अलग अलग हिंदू को अलग मुसलमान करके पढ़ाने का था। और मैडम बेचारे उनको क्लास रहने से एक ही जगह पढ़ा दिए। अब हिंदू को बच्चे भी लिख लिए उसमें उसमें हमारी क्या गलती है उसमें? सर का नाम क्या बोल? मल्लैया सर का नाम है, मल्लैया सर अल्हम्दुलिल्लाह अलाल मल्लैया उनके करेस्पॉन्डेंट है। उन्होंने खुद अपनी तरफ से उसको इम्प्लीमेंट करे थे उसमें। ना मेरा अमल है ना दखल है, पेरेंट्स के रिक्वेस्ट पे सारा ओके बोल दिए थे वहाँ पे। आज जो इंसिडेंट हुआ आपको भी मारे? उन्होंने पेरेंट्स से कंप्लेंट करने आए थे आज, तो बोले ऑलरेडी शुरू करे थे। 2-3 मैडम पेरेंट्स कंप्लेंट करने से हम बंद करा दिए, मैडम को भेज दिए, बाद में परमिशन लेके शुरू करेंगे बोल के क्लोज करके पेरेंट्स से बात करके भेजे। पीछे से बीजेपी वाले पूरे आके धरना शुरू हो गए। कौन मारे नाम बोलो? वो मंदुला बालू कुछ नाम है उसका, प्रेसिडेंट है कहते हो बीजेपी का। उन्हें आगे से आवारा मेडी शुरू कर दिया। फिर मैं बाहर चले गया था, जयपुर जाने का था मुझे कैंपेनिंग के लिए, मैडम को लेके जा रहा था हमारे स्कूल के टीचरों को जाने वाला था। तो फिर सर बोले नहीं सर आपको बुला रहे बोल के, बोले फिर वापस बुलाए। गैस वाला फिर आके बात कर रहे शुरू कर दिए। वो मंदुला बालू एक है, वो दशरथ बोल के एक बुढ़ा था वहाँ पे, और नूतला श्रीनिवास रेड्डी कुछ नाम है उसका एक, और हमारा क्या श्रवण कुमार, 2 बच्चे थे वहाँ पे। नहीं पढ़ाए सबको पढ़ाए उनको नहीं मालूम था कि अलग से पढ़ाना है बोल के। और आगे 3 ही दिन और 3-4 दिन और स्कूल को आके उन्होंने सेकंड लैंग्वेज पढ़ाने के कुछ भी परमिशन लेना पड़ता है? नहीं जरूरत नहीं, वो तो हक है ना भाई तेलंगाना का गवर्नमेंट का। वो फिर वो जब आपको पूछे जब वो कहीं को नहीं बोले? मुझे क्या सब हमारा बेटी शुरू कर हमारा तो बात ही नहीं करने दिया। मैं मारो वहाँ के सर का तू बात ना कर, मतलब क्या कौन सा सही है, तो ड्रेसिंग कैसी है तेरी, तू प्रिंसिपल दिख रहा है बोल के बोल रहे। धक्का धक्की में पूरा हिंशट पूरा निकाल दिया मेरा। और केस बुक करे करे बोल रहे थे, मैं अपने FIR लिखा दिया मैं।
मेरे को 11 बजे जब ऑफिस में बिठा दिए, वो मारा का तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब नीचे बिठा दिया ना मुझे, क्या बोलते मजलूम के सर का नीचे, वहाँ पे मेरे अपनी ऑफिस में नीचे बिठा दिए जमीन पे, वो पुलिस वाले वहाँ पे, क्यों उन्होंने बोल रहे देख के और मारेंगे तेरे को, बिठा दिए। कितनी 2-1.5 घंटा में नीचे बैठा रहा वहाँ पे। बाद में फिर MRO साहब बोल रहे उनको सर बैठो नीचे बैठने दो बोल रहे पुलिस। 5-6 लोग थे वहाँ पे, वैसे तो 50 बच्चे टीचर दूसरे आदमी आते वहाँ पे, 50 आदमी थे वहाँ पे, ISO वाले पेरेंट्स भी थे, दूसरे भी थे, लेकिन ये जो बीजेपी के जो लोग थे उन्होंने आके गाली गलो सार को तक गंदे गंदे गालियां दिए। तो सार का से पैसे लेके रखा क्या, वो क्या रहा, क्या करा क्या बोल के, जैसे मारे सार क्या करे मेरी तरफ उनकी तरफ खींचने की कोशिश करे, वो खींचादारी में और घुटने लगे, कोई के पीछे मार दिया यहाँ पे, और पीछे पीछे क्या बोलते पीठ पे घुसे मार दिए, पीछे ठहरा तो दूर बोल के बाटल लेके फेंक के मारा, घुटना लेके बोला ना, घुटना लेके मार दिया उन्होंने। नहीं नमाज किसी को नहीं सिखाया अभी मैं 15 साल से स्कूलों में पढ़ा रहा हूँ, कभी किसी को ये सिखाया नहीं नमाज पढ़ा, ऐसा पढ़ना बोल के। CCTV नहीं, कंस्ट्रक्शन चल रहा था ना, कट गया CCTV। ये क्या लिखा हुआ है वो पेपर पे जो बता के बोल रहे हैं, कोई अलिफ बे थे, अल्फाबेट से खाली अलिफ बे थे लिखे हुए थे, वो होमवर्क दिए बच्चों को, टीचर था वो उधर से है वैसे ही उर्दू वर्णमाला है, वो अलिफ बे था, कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। और जिस दिन स्कूल शुरू हुआ आज तक मैं क्लास अटेंड नहीं करा किसी का, एडमिशन में फिर रहा हूँ मैं इसमें, और पेरेंट्स आ रहे उनसे बात कर रहा हूँ, लंच टाइम बच्चे उसमें छू मैं किसी क्लास में गया नहीं, पढ़ाया नहीं, बच्चों को तक बोल दिया कि भाई जून का महीना छोड़ देंगे, जुलाई की फर्स्ट में मैं सिलेबस शुरू कर दो, टेंशन न करो तुम आओगे, बच्चों को इत्मीनान दिला के अपने काम में था। MRO सब जाके बच्चों से पूछे, फिर खान सर कुछ बोले क्या तुमको पढ़ा नहीं सर, कुछ भी नहीं पढ़ाया हमको, खाली मैडम ही हमको पढ़ाया होता है, खान सर कुछ भी नहीं बोले, बच्चे को तो गवाही दिए, कौन की बच्चा कहते वो पेरेंट का बच्चा था, उन्होंने बोल क्या बोल के सिखाया कि हाँ सर नमाज पढ़ने सिखाया बोल के बोले करते, तू गंदे गंदे क्या जलाऊ जिहाद करा रहा है कि तू क्या गली गालने थे, अल्फाज नहीं बोलने के लिए, वीडियो में सब सुना, साफ सुना जरा, लोग सडन करे, ये प्री प्लान है, वो प्री प्लान नहीं था उन लोगों का, 3-4 दिन से बात चल रही थी। हम बोले भाई जानते जब मसला कहीं करना है अपने तमाशा करना नहीं है, बाद में परमिशन लेके करेंगे बोल के रुका दिए थे, उसको बंद कर दिया, सब हो गया था। आज बच्चे जो है ना, जो कल हॉलिडे रहने से बच्चे आज जाके होमवर्क बताया करे, मैडम हिंदुओं के बच्चे उन्होंने खुशी से बताया, उन्होंने उसको कर रहे थे, वो उसको आज खुसूसन दोबारा सिखाया बोल के वो अलग तमाशा शुरू कर दिए। पुलिस के सामने क्या बोले फिर आप? जी पुलिस मैं उल्टा मेरे को सर तू जरा तो दिमाग है जरा तो भी, तू ये क्या किसी बिना पूछे करा, अरे मेरा भाई बोलो मेरा अमल दखल कुछ भी नहीं है भाई, मैं कुछ भी नहीं बोला, मैं सार बोले इम्प्लीमेंट करना था कर दिए, टाइम टेबल लगाना मेरा काम है करके दे दिया सर को, मैं ना मेरा साइन था ना कुछ भी नहीं। तो अभी कितनों को अरेस्ट करे कुछ मालूम हुआ? अरे किसी को अरेस्ट नहीं करे, मेरे को उल्टा सुबह 11-12 बजे से दो शाम के 9 बजे बिठा दिया स्टेशन में, मेरे को हमारे सर को दोनों को बिठा दिया स्टेशन में। एक मिनट सर, ये जो है ना, अस्सलाम वालेकुम, मैं अमजदुल्ला खान, स्पोक्समैन MBT। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रेवंत रेड्डी की कांग्रेस की सरकार में तेलंगाना जो है एक लेबोरेटरी बन गया RSS के लिए। आए दिन कहीं ना कहीं फ़िरका परस्त तनासिर हमले करते जा रहे हैं और तेलंगाना पुलिस उसके लिए खामोश बैठी हुई है। कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा है कि ख़ुद रेवंत रेड्डी ये इशारा दे दिए हैं पुलिस वालों को कि आप जो है हिंदुत्व ताकतों की तशद्दुद के ख़िलाफ़ में खामोश बैठे रहो। बकरीद के नाम पे हमारे ऊपर हमले हुए, पूरा बकरीद तमाम जो है ये हमले चलते रहे, और दूसरी तरफ जानवरों को खींचते रहे, गिरफ्तार करते रहे, पुलिस केसेस डालते रही। अभी जो है आज का एक वाक़या पेश आया कि आरमूर में एक स्कूल है, भरत चंद्रा हाई स्कूल जिसका नाम है, तो उसमें जो है मुस्लिम बच्चों की तादाद ज़्यादा है। तो उसमें आमिर नामी एक उर्दू टीचर बच्चों को उर्दू पढ़ा रहे थे। कोई किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं की जा रही थी। उर्दू जो है सेकंड लैंग्वेज, तेलंगाना स्टेट की सेकंड लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू है। तो इस पर जो है आज कुछ बीजेपी और RSS के कारकुन अंदर स्कूल में दाखिल होते हैं और वो स्कूल के मैनेजमेंट के ख़िलाफ़ में गड़बड़ करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं स्कूल में, और कुछ ही देर में पुलिस मौजूद हो जाती है। आरमूर के SHO वहाँ पर मौजूद होते हैं, SI सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस मौजूद हो जाते हैं। आरमूर के पुलिस की मौजूदगी में आमिर नामी उर्दू टीचर को जो है बहुत बुरी तरीके से मारा जाता है, उनको जलील किया जाता है,
तुरकुड़ू तुरकुड़ू बोल के उनको गालियां दी जाती है। और इस तमाम वाक़ये पे आरमूर की पुलिस खामोश बैठी हुई है। मुझे जो बीजेपी आरएसएस वाले जो हमला किए उसके ऊपर उतना गम नहीं है। उनका तो काम है ये करना, तेलंगाना की गंगा जमनी तहजीब को बिगाड़ना उनका काम है। दे आर बीइंग पेड टू डू दैट थिंग्स। मगर मुझे अफसोस उस बात का है कि आरमूर पुलिस की मौजूदगी में हुआ। और निज़ामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस जिस वक्त इन्हों चार्ज लिए थे, मैं जब भी बोला था कि इन्हों आने के बाद में जो है पूरा वन साइड काम होगा वहाँ पर बीजेपी आरएसएस का, चाहे शेख रियाज का इनकाउंटर हो या चाहे कोई वाक़या पेश आने दो, आपको जो निज़ामाबाद के कमिश्नर ऑफ पुलिस के उनके एक्टिविटीज़ को आपको नोट करना चाहिए। आरमूर में पहला वाक़या नहीं है कि टीचर को पकड़ के बेइज्जत किया गया है। टीचर का मुकाम क्या होता है, ये जो गुंडा अनासिर है, ये जो बीजेपी आरएसएस के गुंडे जो आज घुस के, शायद उनको टीचर का मुकाम नहीं मालूम। यानी माँ बाप से ज्यादा अगर किसी को मुकाम दिया जाता है तो टीचर को दिया जाता है। बड़े बड़े आप देखे, आपके खुद लीडर नरेंद्र मोदी अपने टीचर के पैर पड़ते हुए, अमित शाह अपने टीचर के पैर पड़ते हुए देखे आप लोग। लेकिन इस ये जो मधुशाला बालाकृष्णा जिसका नाम है, मधुला बालाकृष्णा, बीजेपी के लीडर की ये पूरी गैंग गई थी वहां पर जाकर स्कूल में जो है भरत चंद्रा हाई स्कूल में ये एहतजाज किया गया, ये इनको मारा गया आमिर को। बड़ा अफसोस हुआ कि आरमूर जो एसएचओ है, अगर कमिश्नर ऑफ पुलिस तुम अगर दियानतदार है, अगर तुम वाकई सत्यमेव जयते में अगर तुम बिलीव करते हैं, जो कसम खिलाई गई आपको आईपीएस बनने के बाद में और जो पुलिस डिपार्टमेंट में आने, तो इमीडिएटली सस्पेंड करना चाहिए एसआई आरमूर को और एसएचओ सर्कल इंस्पेक्टर आरमूर को, दोनों को सस्पेंड करना चाहिए। इनकी मौजूदगी में वो आमिर को हमला हुआ वहां पर। और ये पहला वाकया नहीं है। आज से कुछ दिन पहले 5 जून के दिन एक और एक वाकया पेश आया। राज मल्लू नामी एक शख्स 5 लाख रुपए सूद पर, इंटरेस्ट पर अब्दुल बारी नाम को पैसे देता है। अब्दुल बारी, उसका तकरीबन 3 साल तक इंटरेस्ट बनता है, किसी वजूहत पे 1 साल नहीं बने जाते हैं। एक नया पेपर लिखा जाता है और वहां पर सरपंच की मौजूदगी में 5 लाख रुपए रिटर्न किए जाते हैं, साथ में 3 साल का इंटरेस्ट जो पहले दिए सो। 2 चेक्स जो दिए गए थे वो 2 चेक्स वापिस नहीं किए जाते, एक ही चेक दिया जाता है। कुछ दिनों के बाद में अब्दुल बारी अपने अकाउंट में 75-80 हजार रुपए डालते हैं किसी और को देने के लिए। अब्दुल बारी भी, उन्होंने खुद एक टीचर है, उन्होंने भी लेक्चरर है कॉलेज में, तो अब्दुल बारी का चेक उन्हें डाल के जो है राजमल्लू उनके अकाउंट से 75 हजार रुपए निकालता। जब एसएमएस आता, इन्हों जाके बैंक में मालूम करते तो ये मालूम होता है कि राजमल्लू जो है ये पैसे विड्रॉ किया है। तो अब्दुल बारी सरपंच करने जाते, तो सरपंच बोलता है कि कल सुबह अपन बात करेंगे। दोनों टेलीफोन पे बात करने के बाद में इन्हों जो है राजमल्लू के घर पे गए, वहां पर दोनों में झगड़ा होता, बहस तकरार होते। राजमल्लू के घर में जो है वहां पर पेट्रोल कैंस और वहां पर डीजल, क्योंकि उसके पास 3 ट्रैक्टर्स है और ट्रैक्टर्स किराए पे देता वो, और दोनों के झगड़े में जो है पेट्रोल का कैन गिर के उसके मकान में एक रूम को आंच लग गई। तो इसको अब्दुल बारी को पकड़ के पूरा गांव मारता झाड़ू बन के उनको। अब्दुल बारी को बचाने के लिए उनका भाई गया वहां पर, तो उसको भी मारते हैं लोग। बाद में पुलिस आती, अब्दुल बारी पे संगीन मुकदमा डाल के उनको जो है जेल को भेज दी। उनको संगीन मुकदमा डाल के भेजे। आज उसकी बेल रिजेक्ट हो गई, निजामाबाद सेशन कोर्ट में आज उसकी बेल रिजेक्ट हो गई। आज भी जिस वक्त वाकया, उस दिन भी अब्दुल बारी की वालदा का मैं स्टेटमेंट पोस्ट किया था, और अब्दुल बारी को और उनके पूरे अफराद खानदान को वो जो पिंपरी गांव है वहां पर से खाली करके जाने के लिए मजबूर किया जा रहा है, और उनसे 15 लाख रुपए का डिमांड किया जा रहा है। 6.5 लाख रुपए ऑलरेडी वो लोग एक जमीन बेच के दे दिए वो लोग। तो आखिर आरमूर में हो रहा क्या बताइए आप? क्या निजामाबाद कमिश्नर आंख मूंझ कर खामोश बैठे हुए हैं? सेटलमेंट करा रही पुलिस वहां पर। आरमूर पुलिस की जिम्मेदारी थी ना कि खातिल, उसको भी ऊपर भी केस बुक करना था राजमल्लू पे, क्यों नहीं केस बुक करे? उन्हें जब चेक ड्रा करा तो उन्हें सरपंच मौजूद है, विटनेस वहां पर 5 लाख रुपए रिटर्न करे। वो केस में भी ऐसी हुआ निजामाबाद और आरमूर पुलिस का। मैं सख्ती से, क्योंकि टीचर को हम बहुत अच्छी नजर से देखते हैं,
माँ बाप के बराबर टीचर होता है, और उस टीचर के साथ, और वो भी एक उर्दू मीडियम के टीचर के साथ ये वाकया पेश आया। सारे टीचरों से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि इस मामले पे आप लोग एहतजाज करिए, नहीं तो ऐसा होगा कि कोई भी गुंडा अनासिर घुसेंगे, टीचरों को मार के जाएंगे। मैं रेवंत रेड्डी से गुजारिश कर रहा हूं कि आपका ये सॉफ्ट हिंदुत्व पॉलिसी आपको साथ देने वाला नहीं है। 2 साल गुजर गए, 2.5 साल गुजर गए, और 1-2 साल गुजर जाते। आने वाले दिनों में कांग्रेस के कैंडिडेटों की जमानत नहीं बचेंगी, याद रखो आप। जितने भी 5 रियासतों में इलेक्शन हुए साबिका में, जो बीआरएस का हल हुआ, आप उस पर गौर करिए आप। मैं फिर से रेवंत रेड्डी से गुजारिश कर रहा हूं कि आरमूर के सब इंस्पेक्टर, आरमूर के सर्कल इंस्पेक्टर, उसकी मौजूदगी में मधुशाला बालाकृष्णा आमिर टीचर को थप्पड़ मारा, गला पकड़ा, उसके सर को जख्मी किया, उसको जो है तुर्कुड़ों के मुखातिब हुआ। क्या बात है, क्या मायने है तुर्कुड़ों के, बताइए आप। तो बहरहाल मजलिस बचाओ तहरीक सख्ती से इसका नोट लेती है, इसको फौरी सस्पेंड करना चाहिए। और जितने लोग थे, उमन ऐसा होता कि जब फिरका परस्त अनासिर कोई मुसलमान पे हमला करते, अगर 25 आदमी मिलकर अगर हमला करे, 20 आदमी करे, पुलिस, तेलंगाना पुलिस का ये रवैया बन चुका है कि 1 या 2 पे एफआईआर इश्यू करते खाली। आज जितने थे स्कूल में मौजूद, पूरों पे एफआईआर होना। कमिश्नर ऑफ पुलिस निजामाबाद, अगर तुम दियानतदार है, इफ यू आर ए सिंसियर ऑफिसर, पूरों पे एफआईआर करो, पूरों को गिरफ्तार करो। आपको करना पड़ेगा, आप नहीं करने, आप जो है अंजाम नहीं मार सकते केस को। यू हैव टू टेक एक्शन, अदरवाइज मजलिस बचाओ तहरीक हम डीजीपी से सीपी, हम सीएम से नुमाइंदगी करेंगे और आपको सस्पेंड कराने का मुतालबा करेंगे हम। शुक्रिया। यार जिंदा सोबत बाख। Germantown Multi Speciality Hospital, Dr. Mir Jawad Zar Khan, National Award winner, Senior Orthopedic Surgeon and Director of Germantown Multi Speciality Hospital। इनके साथ मोस्ट सीनियर एंड वर्ल्ड एक्सपीरियंस डॉक्टर की टीम आपकी खिदमत में रहेगी। डॉक्टर वासिफ आजम, डॉक्टर भारवी चंदोरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की टीम खिदमत अंजाम दे रही है। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड एंड पैथोलॉजी लेबोरेटरी की 24 घंटे इमरजेंसी सर्विस के साथ अपने तमाम अमराज का मुकम्मल इलाज करवाइए। जर्मनटन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अपोजिट टू पिलर नंबर 150, अत्तापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।